know that everybody are keeping well at home and you are spending your quality time in studies, and there is no need of introduction. Still I am giving you the introduction of mine today. I am the teacher of SSD, Mr. Sujit Ranjan or S. Ranjan. Whatever the works we are providing you, please do it at home and spend your time in the studies, because during this crucial time we are bound to do that. In today's topic, already we are continuing our history part, chapter 2. Right? So here, yesterday we were discussing about religion and anti-colonialism. Today, the discussions already started, and let's start the topic I will reveal in the class, right? And watch it properly, and thank you for watching every day and commenting me. Still, I am waiting for your comments. Today's topic is the vision of modernization. The last class we have discussed about religion and anti-colonialism, and today we are going to discuss about it, the vision of modernization. The French colonialism, जो फ्रेंच थे, जो वियतनाम में वो राज करते थे और डोमिनेशन करते थे, उनको डिफरेंट वे से रेसिस्ट किया गया है, राइट? तो फिर the levels of various forms they were restricted, but all nationalists had to grapple with one set of question. हर एक nationalist के बीच में एक ही question आता था, तो what is to be modern? क्या modern करना चाहते? What was it to be nationalist? In order to be modern, was it necessary to regard tradition as backward and reject all earlier आइडियाज एंड सोशल प्रैक्टिसेस? क्या ये मॉडर्न होने के लिए हम लोग को हर चीज़ जो हमारे पुराने सोशल प्रैक्टिसेस हैं, आइडियाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, इन सबको ख़त्म करना होगा, राइट? सो दैट्स द क्वेश्चन हियर arises between them. What it necessary to consider the West as the symbol of development and civilization and try and copy the West? क्या वेस्टर्नाइजेशन ही एक डेवलपमेंट का सिंबल है और सिविलाइजेशन का सिंबल है? क्या ये कॉपी करना ही पड़ेगा वेस्टर्नाइजेशन का? साइड दीज आर द क्वेश्चंस वेयर अराइज्ड बिटवीन देम. Different answers were offered to such questions. Some intellectuals felt that Vietnamese tradition had to be strengthened to resist the domination of the West. ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल थे वियतनाम में, वो इस क्वेश्चन का आंसर देते थे कि जो हमारी वियतनामीज ट्रेडिशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा. क्यों? कि ये डोमिनेशन, वेस्ट डोमिनेशन जो है उसको रेसिस्ट करने के लिए, उसको यहाँ से हटाने के लिए हमें वियतनामीज ट्रेडिशन को बहुत ही स्ट्रेंथन करना होगा. While others felt that Vietnam had to learn more from West even while opposing foreign domination. So बहुत वियतनामीज के और भी इंटेलेक्चुअल थे, वो क्या कह रहे थे कि नहीं, हमें बहुत कुछ सीखना है वेस्टर्न कल्चर से, लेकिन वो भी फॉरेन डोमिनेशन को अपोज करते थे. These different visions led to the complex debates and which could not be easily solved, right? So क्या है, हम इन इंटेलेक्चुअल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. In the late 19th century, a resistance to French domination was very often led by Confucian scholar activist. Confucianism एक बहुत पुरानी religion था, as yesterday we were studying about it, who saw their world crumbling. Educated in the Confucian tradition, Han Boichao, right, 1867 to 1940 was one such nationalist, जो एक nationalist थे वहाँ के,
He became a major figure in the anti-colonial resistance from the time he formed the Revolutionary Society. एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी हान बोई चाओ ने बनाए थे, राइट? और उसको डुई हान थोई in 1903 with Prince, right, Wang De as the head. ये था एक रिवोल्यूशनरीज। जैसे हम इंडिया में बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज के नाम, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम जानते हैं, ये भी हान बोई चाओ भी उनमें से एक है जो वियतनाम नेशनलिस्ट है और अपनी कंट्री के लिए, अपनी देश के लिए लड़ाई करता था, राइट? हान बोई चाओ मेड द चाइनीज रिफॉर्मर लिंग की चाओ। ये सारे नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, फिर भी पढ़ लेते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इन योकोहामा इन 1905 हान्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक, एक उन्होंने हान बोई चाओ उन्होंने बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल बुक लिखा था, उसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, वॉज रिटन अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड एडवाइस ऑफ कीचाओ, वो जो चाइनीज रिफॉर्म था लियांग कीचाओ, उनके इन्फ्लुएंस से ये बुक लिखा गया था। एंड ये बुक वाइडली read and bestseller in Vietnam and China and was even made into a play. यहाँ ड्रामा और प्ले भी इस बुक के तो बनाया गया है। और एक यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट? Which book was the best seller in Vietnam? तो हमें आंसर ये लिखना होगा कि The History of the Loss of Vietnam. Okay, the book focuses on two connected themes. इसमें दो थीम्स होते थे, द लॉस ऑफ सॉवरेनिटी एंड द सर्विंग ऑफ टाइज विद चाइना, टाइज दैट बाउंड द इलाइट्स ऑफ द टू कंट्रीज विद इन अ शेयर्ड कल्चर। यहाँ पे दो थीम क्या होता है, एक तो सॉवरेनिटी, लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, जो स्वयं शासन था, जो वियतनाम की शासन थी वो लॉस हो गया, और दूसरा टाई विद द चाइनीज कल्चर, राइट? इट इज दिस डबल लॉस दैट Fan laments, a lament that was typical of reforms from within the traditional elite. Fan lament का मतलब यहाँ पर रोना नहीं होता, यहाँ दुख होता है, right? So other nationalists strongly differed with the Phan Boi Chau. One such was Han Chu Trench, right? He was intensely hostile to the monarchy and opposed to the idea of resisting the French with the help of the court. His desire was to establish a democratic republic. इनका जो भी था वो democratic republic establish करना था, right? Again, profoundly influenced by the democratic ideas of the West. He did not want to wholesale rejection of Western civilization. यहाँ और एक आते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, जो हान चू ट्रिंच ये कहते थे कि कंप्लीटली रिजेक्शन वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनसे भी सीखना है और हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी एस्टैब्लिश करना है। ही एक्सेप्टेड दैट फ्रेंच रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी बट चार्ज्ड द फ्रेंच और फॉर नॉट अबाइडिंग बाय द आइडियल। ही डिमांडेड दैट द फ्रेंच सेट ऑफ लीगल and educational institutions and develop agriculture and industries. फान चू ट्रिंच का ये भी कहना है कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरी की जो आइडिया थी, जो लिबर्टी, राइट, और इक्वालिटी, ये चीजें यहाँ पे नहीं हो पा रहा है और इन आइडियाज को यहाँ पे बनाया जाए, राइट? एंड ही वाज आल्सो डिमांडेड दैट फ्रेंच सेट ऑफ लीगल एजुकेशन सिस्टम वो बनाए, क्योंकि ऑलरेडी हमने एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे बहुत सारे मिलियंस वहाँ पे एनरोलमेंट होते हैं और वहाँ फाइनल रिजल्ट में सबको फेल किया जाता था, इनके बारे में भी वो यहाँ पे बोलते हैं। और वो ये भी डिमांड करते हैं कि डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के बारे में, राइट? ओके, थैंक यू फॉर टुडेज and next we will going to discuss about other ways of becoming modern Japan and China, right? Till then, goodbye.